नमस्कार, मैं अशोक व्यास। कार्यक्रम इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास में आपका स्वागत करते हुए आज मुझे बहुत बहुत प्रसन्नताएं एक साथ मिल रही हैं, जिसमें से मैं फिर एक बार याद करना चाहता हूं कि हाल ही में हमने जहां रक्षाबंधन का पर्व मनाया है और अगस्त के महीने में श्रावणी पर्व के बाद में इस बार एक विशेष पर्व जो 5 अगस्त को आ रहा है, राम जन्मभूमि के निर्माण के शुरुआत के साथ, उसको लेकर भी उत्साह है। और बहुत सी बातें हैं उत्साह को बढ़ाने वाली, कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनको लेकर चिंताएं भी बढ़ती हैं, पर उत्साह को बढ़ाने वाली आशा और चिंताओं को घटाने वाली समझ, वो दोनों अपने साथ लेकर भारत से अब हमारे बीच में, हमारे और भारत सरकार के बीच में एक सार्थक, सक्रिय, रसमय पुल बनने वाले जो कौंसल जनरल साहब हैं, आज का कार्यक्रम उनके स्वागत को समर्पित है। सो आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ वेलकमिंग रणधीर जायसवाल जी। नमस्कार, स्वागत है। Thank you, Mr. Vyas. It's a pleasure to be in your studio. Thank you very much, sir. And see, what happens is when you start a show, you get an additional dose of excitement and some sort of energy, and then we move from this to this. But I want to begin on a somber note today because we have heard about the blast at Beirut, and so far we have heard that we lost 73 people and thousands of people are wounded. So, praying for them as well as expressing our condolence for the families. And starting with a serious note with you, when you come across these kind of unfavorable or rather tragic events unfolding, which this COVID-19 is also ushering us into experiencing that, how do you respond, and what is your way of maintaining a sense of balance? I think, in life you have ups and downs. We all have to take that into our stride. COVID-19 is a pandemic. The whole world has been impacted like never before. These are challenging times, but you have to maintain your poise, you have to maintain balance in yourself, and see how best you can move forward. Adversity comes, but through determination, through commitment, one can overcome. With togetherness, one can overcome. By holding each other's hand, one can overcome. You can overcome adversity with taking the help. In India, we have a very deep sense of commitment to a family system. So when we have adversity, you join family, the family provides you succor and hope, and that is how we go forward. Specifically, you talked about the blast in Beirut. I also convey my deepest condolences. We have very friendly relations. India has very friendly relations with Lebanon, and we hope that this particular tragic incident will be put behind, and people there will be able to take all necessary steps so that things can brighten up. Absolutely. In the future. And there is inbuilt system in human mind to move forward and figure out ways to solve all kind of challenges, and there are some people who are more equipped and they kind of train their mind, or they are exposed to the kind of thoughts which help them move forward. And let us request you to go back to the days when you were not an IFS officer, but you were dreaming to do something in your life. So in order to dream big, you need, as you mentioned, determination, as well as some people who sort of inspire you, who stand with you. So talk to us about those formative years when you were figuring out what to do with life. Well, I was a student in Delhi University. I was in college. After college, I was doing law. When you are a student, when you are looking for opportunities, obviously those are not the best of times. You are struggling, but at the same time, you are learning a lot. One thing which is central to realizing your dream or to doing well in life is
to have self-belief in what you are doing, and to be determined in about your actions going into the future. Hard work, there's absolutely no there is no substitute to hard work, and if you have these very basic qualities which are which are true, which are in a sense universal values, they're going to be there on this planet for as long as the sun shines and the moon is there. So if we get the basics of our lives right, I think you are on course to achieve what you intend to. Indeed, basics should be right, and we are happy with that clarity as we have his presence here. Let me take a call, and I think we just lost him, which is all right. We just started off, and down the line we'll take more calls. But as we continue in the trajectory of your experience of the way you were trained to serve as IFS officer, and I have the I should say the privilege of having seen the way American system trains their officers. They even teach them Telugu. I was surprised to see not just Hindi, but if he is to be posted in Chennai, then they have the South Indian languages also being taught. So in our case, what you were kind of, if I use the word taught or trained for, and when you have been to a couple of assignments at Portugal, Cuba, South Africa, was there a match between the training and the real life experience? In the Indian diplomatic service, one has to have a compulsory foreign language. You do not qualify, you have to clear that language exam to be confirmed in service. In my case, that happened to be Portuguese. But let me tell you, languages open a whole world of opportunities for you. From Portugal, I moved to Cuba, where I learnt Spanish. And I can tell you, when I would speak Spanish there, the kind of response I got from people was of a totally different order. They accept you as their own. And the best part of our diplomatic life is that we go to a country as a stranger, but when we leave that country, we are friends. We live as friends of people there, and we widen our relationship. It also helps, if you look at the context of India, we are a multilingual context, and we have been so for the last so many centuries. An average Indian is able to speak several languages, and that helps. Your articulation is better. At times, your thought process is different. Your analytical skills are different. So that I would say that I have picked up several languages in my diplomatic career, from Portuguese to Spanish. In both these languages, I'm almost fluent. I'm being modest there. But so allow me to interrupt you and sort of let's have a demonstration. In fact, it is very fascinating if someone can speak more than one language. जैसे हिंदी हम में से ज़्यादातर लोग बोलते हैं, या हम जिस भी राज्य से आते हैं, जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थानी बोलते हैं, पंजाबी, गुजराती, बट आपके पास तो बहुत सारी लैंग्वेजेस का खजाना है. आप कोई एक वाक्य लेके हमें कुछ बता सकते हैं? खैर, हिंदी तो हिंदी हम लोग अपने गांव में घर में बोलते हैं. हिंदी के अलावे मेरे गांव की जो भाषा है, डायलेक्ट है, वो वज्जिका है. वज्जिका जो मगध साम्राज्य के ज़माने में वज्जिका कॉन्फेडरेसी हुआ करता था, जिसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी. वैशाली, हमारा ये मानना है कि लोकतंत्र का जन्म वैशाली में हुआ, जहाँ पर पहला हिंदुस्तान में रिपब्लिकन एक्सपेरिमेंट हुआ. तो मेरे गांव की भाषा वज्जिका है. मेरे गांव से मैं जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आता हूँ तो वहाँ फिर लोग ज़्यादा हिंदी बोलते हैं. मेरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो कि हाजीपुर है, उसके बगल की नदी को अगर आप क्रॉस करें, दूसरी तरफ जाएं, तो वहाँ पर भोजपुरी शुरू हो जाता है. तो हम लोग के इर्द गिर्द भाषाओं का ताना बाना हमेशा से रहा है. थोड़े ऊपर चले जाएं, 100-200 किलोमीटर हमारे शहर से आगे चले जाएं, तो आपको मैथिली बोलने को, सुनने को और बोलने को मिलेगा. थोड़ा एक और गंगा नदी को पार कर जाएं तो हम मगही बोलने को और सुनने को मिलेगा.
तो अपने आप में जो ये ताना बोना है, ताना बाना जो है, भाषाओं का ताना बाना है, सिर्फ भाषा नहीं है, सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है, उसके पीछे एक कहानी है, एक सभ्यता है, एक सोच है। वो जो है आपको बहुत मजबूती प्रदान देती है। तो मेरा तो अपने लोगों से और अपने परिवार के, अपने बच्चों से और भी लोग से जिससे मैं मिलता हूँ, उनको ये ज़रूर कहता हूँ कि ये हमको विरासत में मिली है। हिंदुस्तान में, भारत में रहने वाले लोगों को ये हमें विरासत में हमारे पूर्वजों ने दी है, जो मल्टीलिंगुअल बैकग्राउंड है, उसको हमको खोना नहीं चाहिए। उससे हमको बहुत लाभ मिल रहा है। तो अब ना दो एंगल पे बात, मैं एक तो चाहता कि आप पोर्चुगीज़ और स्पेनिश और उसमें कोई एक वाक्य जो आपको लगे कि अलग अलग भाषाओं में आप हमारे दर्शकों को सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। Hay muchas gentes que hablan español en esa parte del Nueva York y otras parte de Estados Unidos, y para todos ellos yo deseo muchas suertes y felicidades de la India, y espero que nuestros lazos entre India y sus países y entre las comunidades indios y de comunidades que hablan español en Estados Unidos। बात हो गई, अब थोड़ा इसका अर्थात बताइए थोड़ा सा। अर्थात यह है कि यहाँ पर जो बहुत सारे लोग रहने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, वो स्पेनिश भाषा बात करते हैं। मैं हिंदुस्तान से उनके लिए आभार लेके आया हूँ, और आशा ये करता हूँ कि जो भारतीय समुदाय यहाँ रह रहा है और जो स्पेनिश बोलने वाले समुदाय यहाँ रह रहा है, उन दोनों के बीच में आदान प्रदान हो, मिठास हो, और दोनों के बीच में मजबूती बढ़े। और साथ में जो यहाँ पर स्पेनिश बोलने वाले लोग हैं, उनके देशों में और भारत के देशों में मैत्री बढ़े। क्या बात है। ये तो आपके पास जो शक्ति है एक और भाषा की, वो आनंद भी बढ़ाने वाली और समझ और जो बेसिक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाने में इसका बड़ा सहयोग रहता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक पुल बातचीत का फ़ोन के द्वारा। हेलो ITV लाइव। अशोक जी नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, कमल गुप्ता बोल रहा हूँ। हाँ नमस्ते कमल जी। तो आपका धन्यवाद है, आप स्वागत करने के क्रम में मेरे साथ हैं कौंसल जनरल साहब रणधीर जी हमारे साथ हैं। आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं पहली बात तो थैंक यू फॉर टेकिंग माय कॉल अशोक जी, एंड आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय वार्म वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी टू अवर न्यू कॉन्सुलेट जनरल रणधीर जी। रणधीर जी सर, वेलकम टू न्यूयॉर्क। कमल जी बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। I know Jagdish ji has already personally invited you for the tomorrow's event at the Times Square, and also personally I would like to request you to join us tomorrow evening, please. And this event is for all of us proud Indians to be a part of the history. Looking forward to see you tomorrow, sir. I hope you will join us tomorrow. जी। थैंक यू वेरी मच कमल जी, थैंक्स फॉर योर कॉल सर, आई अप्रिशिएट दैट। तो 5 अगस्त की बात को लेते हुए, भाषाओं की बात को लेते हुए, संस्कृति की बात को लेते हुए, एकता की बात को लेते हुए, मैं 5 अगस्त जो पिछले बरस एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी उसके बारे में आप कुछ बताएं कि उसको लेके यूनाइटेड नेशंस तक में सवाल पाकिस्तान की तरफ से उठा दिए गए थे। मेरा संकेत जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल 370 था उसके एब्रोगेशन को लेकर है। इसके बारे में आपने एक साल में क्या कुछ ऑब्जर्व किया है आप? अशोक जी, धारा 370 का एब्रोगेशन का 1 साल होने जा रहा है। कल 5 अगस्त है। इसी तारीख को पिछले साल एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था, जिसको संविधान के तहत इस निर्णय को लिया गया। भारत के पार्लियामेंट ने इस निर्णय को लिया। उसके बाद हम लोगों ने कश्मीर में बहुत सारा जो डेवलपमेंट का काम है, गुड गवर्नेंस का काम है, उसको हम लोगों ने किया है। वहाँ पर लोग में शक्ति लाने के लिए पीपल ओरिएंटेड अप्रोच हमारा रहा है। बहुत सारे डेवलपमेंट का काम हुआ है, नई नई चीज़ें हुई हैं, महिला सशक्तिकरण हुआ है, हमारा राइट्स बेस्ड अप्रोच रहा है। उसमें हम लोग राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट फॉर प्रोटेक्शन
ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। तो कई कई नई नई चीज़ें हम वहाँ लेके आए हैं जिससे वहाँ पर लोगों को मजबूती मिल रही है, वहाँ के किसानों को मजबूती मिल रही है, वहाँ पर नए जॉब्स क्रिएट किए गए हैं, नए IT पार्क्स बनाए जा रहे हैं, 2 शहर में लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम का पे काम किया जा रहा है। 50 नए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बने हैं उसमें से 7 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, 5 नए नर्सिंग होम खोले गए, नर्सिंग कॉलेजेस खोले गए हैं। तो अपार संभावनाएं बनाए गए हैं। आपको पता होगा कि कश्मीर के अंदर जो किसान हैं वो सेब उगाते हैं, सैफरन जो कि ज़ाफ़रान किसको कहा जाता है, वो भी कश्मीर का एक पैदावार है जो कि दुनिया भर में प्रचलित है। उसके लिए हम लोगों ने बहुत काम किया है। GI टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग सेंटर खोला गया है ताकि वहाँ पर जो किसान वर्ग है और जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं उनको बेहतर से बेहतर अपने फसल का बेहतर से बेहतर मुनाफा मिले। तो इस प्रकार का जो हमारा ग्रास रूट्स और पीपल ओरिएंटेड अप्रोच रहा है उससे काफ़ी लाभ लोगों को मिला है। पिछले बार इस साल के पहले हम लोगों ने बहुत दिन के बाद वहाँ पर ब्लॉक डेवलपमेंट लेवल पे पहली दफ़ा लोकल गवर्नमेंट का, लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन हुआ। ये अपने आप में एक नया आयाम लेके आया है और इससे जो मजबूती मिली हमारे आउटरीच को, हमारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को और गुड गवर्नेंस को। और इसी को लेके हमारी सरकार प्रतिबद्ध है जम्मू कश्मीर में लोगों को नए अवसर प्रदान करने के लिए और उनका जीवन बेहतर करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है। इसके साथ साथ मैं ये भी याद करूं कि एब्रोगेशन के बाद से जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी गतिविधियां थी उन पर भी रोक लगी। पूरी तरह खत्म हुई ऐसा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशत देखा जाए तो काफ़ी उसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई हैं और वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ मतलब का डर कम हो रहा है। जी, मैं आपकी इजाज़त से एक कॉल और ले लूं। जी हेलो ITV लाइव। हेलो हाँ जी, नमस्ते। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आपका शुभ नाम? आवाज से पकड़ में नहीं आ रहा है। नमस्कार व्यास जी, शास्त्री जी बोल रहे हैं। हाँ जी, तो टीवी का वॉल्यूम कम करें आप। टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल कम हो गया, तो बस मैंने इसलिए फोन किया है कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं वेलकम करना चाहता हूँ अपने रणधीर जायसवाल जी का, अपने काउंसिलर जनरल साहब जो हैं। जी जी जी, धन्यवाद। और इसके साथ साथ एक और बहुत अच्छी वार्तालाप जो मैं सुन रहा था उसमें ये कि कश्मीर का हमने सुना कि खूब सुर्खियों में था सब कुछ और हम बहुत आनंदित हुए G70 के हटने के बाद, पर वहाँ जो कुछ सकारात्मक हो रहा है वो अभी जो सुना मैंने रणधीर जी के द्वारा, तो वो बहुत हर्षित करने वाला विषय है और बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से और स्वागत न्यूयॉर्क शहर में हमारी तरफ से। बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद शास्त्री जी। आपकी रिस्पांस वो करें उसके पहले मैं एक और कॉल ले लेता हूँ, फिर दोनों को आप साथ में रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। हेलो ITV लाइव। हेलो, गुड इवनिंग, दिस इज प्रभाकर फ्रॉम न्यूयॉर्क। प्रभाकर जी, you have the pleasure of welcoming our new Consul General Sahab. Randir ji is with me. Yes, I do welcome the new Consul General, and I want to point out. Go ahead. Reduce the level of your television at home. Oh yes, sure. Be quick, please. We have limited time. Okay. I want to point out one correction, though, that when you say Pakistan, Pakistan does not exist, because in 74, the Pakistan, which was West Pakistan and East Pakistan, the East Pakistan has been separated out and become an independent country. So what is remaining is only West Pakistan. So don't say Pakistan, say West Pakistan. Okay. After 75. Yeah, and whatever United Nations or anybody on the moon or wherever they go, say West Pakistan says like this. I think I think you got your point. I appreciate your I appreciate your call, sir. Thank you, Prabhakar ji. So you may want to respond to that, but I also want to add another thing related to Indo-Pak situation. Pakistan has now issued a new map. You must be aware of it, where
they are claiming Jammu and Kashmir as well as part of Gujarat as their own. It appears as a ridiculous step as a layman that suddenly one day I will get up and I'll say that White House belongs to me. It appears like that to me. How would you? Well, first of all, Shastri Saab and Mr. Prabhakar ji, thank you so much for welcoming me. I look forward to doing my best for the Indian community in the region of New York, and hopefully we'll get a chance to meet sooner than later. On the question of India-Pakistan, there are issues between two countries which keep coming up, and we are always open to discussing issues so that we can resolve them. So that is how we look at dialogue is the best way forward. And as the Indian American community feels so much in tune to the I should say heartbeat of India, तो बहुत छोटी छोटी बातें जो भारत की हैं उनके साथ एक लगाव सा सभी के मन में लगभग मुझे लगता है, जो सेकंड जनरेशन इंडियन अमेरिकन है उनके मन में तो और भी ज़्यादा, और नए वाली जो पीढ़ी है उनके मन में भी रहता है. बट देयर इज़ अनदर थिंग विच रिलेट्स टू America and India, and I believe Indian American community has worked very forcefully in bringing the two countries together. और उसमें अभी मैं जहाँ आपके साथ बात कर रहा हूँ तो स्टूडियो ITV गोल्ड के हमारे जो चेयरमैन हैं, ही वॉज ऑल्सो रिकग्नाइज्ड एज पद्मश्री. तो पद्मश्री डॉक्टर सुधीर पारिक ने एक इंडो US कॉकस बनाने में भी कुछ भूमिका निभाई थी. उन्होंने कुछ थिंक टैंक भी बनाया है. तो ऐसे जो भारत प्रेमी हैं और भी अन्य जो हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और जब आप यहाँ से भारतीय समुदाय से जुड़ेंगे तो क्या अपेक्षाएं आपकी उनके प्रति होंगी? भारतीय समुदाय जो अमेरिका में रह रही है, इनका बहुत बड़ा योगदान है भारत और यूनाइटेड स्टेट्स की मैत्री को बढ़ाना और मजबूत करने में. मेरी इनसे ये अपेक्षा रहेगी कि दोनों देशों के हितों को देखते हुए जो हमारे आर्थिक संबंध है, जो हमारे साइंस और तकनीकी के संबंध है, शिक्षा के क्षेत्र में जो संबंध है, इसको और प्रगाढ़ किया जाए. भारत में बहुत अवसर हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, इन्वेस्टमेंट्स की, नए चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर. 21st सेंचुरी की जो नई टेक्नोलॉजीज़ और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ की जो बात कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हो रही है. स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. अमेरिका में भी स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत मजबूत है. तो इन सभी क्षेत्रों में हम एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं, दोनों देशों के बीच में काम हो सकती है. और इस काम में, इस इंटरफेस में मेरे ख्याल से जो भारतीय समुदाय है उसका एक अहम भूमिका है. भारतीय समुदाय अमेरिका को अच्छा से समझती है, ये भारतीय समुदाय अपने देश भारत को भी बड़े अच्छे से समझती है. वहाँ पर कौन सी पार्टनरशिप, कैसे पार्टनरशिप, किस प्रकार से काम हो सकता है उसको बेहतर समझती है. वहाँ के बिज़नेस इकोसिस्टम को बेहतर समझती है, यहाँ के बिज़नेस इकोसिस्टम को बेहतर समझती है. उसके अलावे हिंदुस्तानी कला और संस्कृति, संस्कार, बोलचाल, बातचीत करने का तरीका और एक जो वहाँ का जो सामाजिक कॉन्टेक्स्ट है उसको समझती है. तो मेरे ख्याल से इंडियन डायस्पोरा, इंडियन कम्युनिटी का ये बहुत बड़ा एक रोल है, जो रोल बहुत अच्छे से वो अदा करते आ रहे हैं. और आगे भी मेरा ये मानना है कि वो इसी प्रकार से आगे भी इन दोनों देशों की मैत्री को बढ़ाते रहेंगे. इसमें मैं एक सवाल और जोड़ूं कि जो नए अपेक्षाकृत नए लोग हैं उनका भारत के प्रति जो भाव होता है वो बना रहे, उस दृष्टि से क्या आपको लगता है कि आपका ऑफिस कर सकता है या कर रहा है? और रिकग्निशन बिकम्स वन वे ऑफ इंस्पायरिंग, बट आई बिलीव it goes more than that, and there are various dimensions of engaging the community. So on behalf of Dr. Sudhir Parik, from Indian American media, what role do you see that can be additionally played? I would say that Indian American media here, if you can focus on some of the issues that are happening in India and bring those issues to the readers here, to project the kind of developments that are happening in India
here so that people look at the opportunities, look at all the excitement that is happening in the Indian economic space, in the cultural space. I think that would be, because you are a living bridge. You know, the Indian community here is a living bridge between the two countries, and in that living bridge context, I think the Indian media has a very important role to play. तो मैं अपने दर्शकों के साथ क्विकली एक बात शेयर कर लूं कि आप न केवल भारत में राष्ट्रपति महोदय के साथ जुड़कर उनको आप समझ लीजिए कि मदद कर रहे थे उनके फॉरेन रिलेशंस के पोर्टफोलियो के बारे में। आप पोर्चुगल, क्यूबा, साउथ अफ्रीका और इसके अलावा आप न्यूयॉर्क में भी पहले रह चुके हैं परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया में। मैं खास करके जो अनुभव आपका रहा भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन राष्ट्रपति महोदय के साथ कार्य करने का, उसके बारे में संक्षिप्त में कुछ बताएं। राष्ट्रपति जी के साथ ये मेरा सौभाग्य था कि मैं उनके दफ्तर में उनको उनके जो इंटरनेशनल रिलेशंस कारभार को देखने का मौका मिला। हमारा जो आज भारतीय अंतर्राष्ट्रीय नीति का एक जो आधारशिला है कि हम दुनिया में सब जगह जाके लोगों को हिंदुस्तान के जो मैसेज है उसको हम लेके जाएं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात रही कि हम राष्ट्रपति जी के साथ 2-2.5 साल के अंदर हम लोग 28 नए देश में हम लोगों ने दौरा किया। बहुत सारे ऐसे देश थे जहाँ पर पहली दफ़ा हम जा रहे थे, और इसमें अफ्रीका के 10 देश, लैटिन अमेरिका के कई एक देश, एशिया के देश, यूरोप के देश। तो ये अपने आप में एक जो हिंदुस्तान का जो दायरा रहा वो इंटरनेशनल रिलेशंस का वो काफ़ी बढ़ा है। और ये मैं बता दूं कि हर देश में हम लोगों ने भारतीय समुदाय से बात की, राष्ट्रपति जी उनके लिए हमेशा समय निकालते रहे, और हर जगह हमको एक पॉजिटिव स्टोरी, एक अच्छी कहानी, एक अच्छा फीडबैक वहाँ के देश से, वहाँ के लोगों से, भारतीय समुदाय के में मिला। इससे हम लोग को एक बहुत प्रोत्साहन मिला। बहुत आभार आपका है। और समय की सीमा को देखते हुए मैं जो खास ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में आप कौंसल जनरल साहब से जानना चाहेंगे उनके बारे में बातचीत करेंगे। मैं उनको फिर तकलीफ दूंगा, ऐसा उनसे अनुरोध रहेगा। पर बहुत संक्षेप में एक नया जो सूचना आई है कि आप भारत यात्रा करना चाहते हैं तो आपको 72 घंटे पहले कुछ करना चाहिए, उसके बारे में अगर आप ब्रीफली बताएं। अभी चूँकि कोविड-19 का ज़माना है, उसको लेकर चूँकि ये हेल्थ और सुरक्षा की बात है, इसलिए हम लोगों ने कुछ इंटरनेशनल ट्रैवल पर कुछ लिमिटेशंस है। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स तो हमेशा से जा सकते हैं, जो OCI होल्डर से वो भी जा सकते हैं, और कुछ और भी लोग हैं अन्य केसेस में भी जा सकते हैं इंडिया। वहाँ पर हम लोग अभी नए कुछ गाइडलाइंस आए हैं जो कि हमारे वेबसाइट पे हैं। क्वारंटीन का है, क्वारंटीन इंडिया में 7 दिन के लिए होता है, उसके अलावा होम क्वारंटीन 7 दिन का होता है। तो कुल मिला के 14 दिन का ये एक पीरियड है जो ट्रैवलर्स हैं उनको ये नज़र पे अपने रखना होगा अगर आप इंडिया जा रहे हैं तो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं, डेथ केसेस हैं वगैरह वगैरह, उसमें कुछ और जिसको कुछ इमरजेंसी में कुछ और रिक्वायरमेंट है उसके लिए कुछ प्रोविजंस हैं। ये सारे जो नए गाइडलाइंस है हमारे वेबसाइट पे है, कॉन्सुलेट के वेबसाइट पे है, उस पर लोग जाके देखें। एक और नया प्रावधान आया है टेस्ट का, अगर 96 घंटे के अंदर आपने टेस्ट कराया है तो उसके कुछ और प्रावधान है, वो आप जाके देख लें। तो इससे लोगों को मेरे ख्याल से बहुत सहूलियत होगी हिंदुस्तान जाने में। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि भारत जाने का मन हमेशा ही रहता है, पर इन दिनों बहुत समय से जा नहीं पा रहे, लेकिन अभी जाने का विचार करें तो कुछ अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना बहुत बहुत आवश्यक है, ताकि लास्ट मोमेंट में या तो आपको एयरपोर्ट से रिटर्न नहीं होना पड़े या वहाँ जाके कुछ ऐसी असुविधा का सामना न करना पड़े जो कि जानकारी होने से अवॉइड की जा सकती है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ रणवीर जायसवाल जी का, हमारे कौंसल जनरल ऑफ इंडिया न्यूयॉर्क के, और उनका स्वागत करने में आपने मेरा साथ दिया, उसके लिए आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम सब की तरफ से मैं सोचता हूँ कि ये जो एक मैत्री और पारिवारिक जो भाव है वो जारी रहेगा। आपकी उपस्थिति का लाभ हमें मिलेगा और पूरे समुदाय की तरफ से आपको सहयोग और आगे बढ़ने का जो एक भाव है वो हमेशा मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ, पधारे। थैंक यू अशोक जी। और आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं यहाँ पर इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी में समस्त परिवार जो हमारे हैं उन सभी को मैं अपना नमस्कार और नमन कहता हूँ। तो हमारे कौंसल जनरल साहब का उनकी सौम्य उपस्थिति और उनकी आत्मीयता की आभा का आनंद आपके साथ बांटने का अवसर मुझे मिला। आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए मंगल कामनाओं के साथ
आपका आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।